जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, हमारे लिए कौन सी चीज सही है, कौन सी नहीं, किस में हमारी भलाई है, ये सब कुछ गुरु जी जानते हैं। गुरु जी को हमारा अच्छा बुरा, सही गलत सब कुछ पता है। संगत जी, इसलिए हमें कभी भी गुरु जी की महिमा पर शक नहीं करना चाहिए। जो गुरु जी हमें देते हैं वो हमारे भले के लिए होता है। गुरु जी हमें टाइम टाइम पर अपने होने का एहसास करवाते हैं और हमें बताते हैं कि तू चिंता ना कर, मैं हर वेले तेरे नाल हाँ। इसलिए संगत जी, हमें गुरु जी की हर सिचुएशन में, दी गई हर सिचुएशन में हमें गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, आज हम आपके साथ दो सत्संग शेयर करेंगे। दोनों ही सत्संग गुरु जी की बहुत प्यारी प्यारी बेटियों द्वारा शेयर किए गए हैं। संगत जी, दोनों ही सत्संग बहुत सुंदर सत्संग है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि हर एक सत्संग में गुरु जी अपनी भरपूर ब्लेसिंग्स हमें देते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर आज के सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। संगत जी, गुरु जी की किरपा रहमत नाल ये मेरा पहला सत्संग है। तो सब तो पहला मैं गुरु जी के मंत्र जाप नाल अपना शुक्राना सत्संग शुरू करांगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सब तो पहला जिद्दां गुरु जी कहते हैं कि सानू अपनी जर्नी बारे स्टार्टिंग तो दसना चाहिए है, तो उदा ही मैं दसन लगी हाँ। संगत जी, जो कुछ भी मेरे तो गलती होए तो मैनू माफ़ कर देना। गुरुबा अपनी बच्ची समझ के मैनू माफ़ करना। ये मेरा पहला सत्संग है। किद्दां मैं गुरु जी नाल कनैक्ट होई ਉਹ मैं ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਭਜਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਭਜਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ 1 ਵੀਕ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਈ, ਵਾਪਿਸ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1-2 ਸਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭਜਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾ ਘਰ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਜਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ 2022 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਬੋਏ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਇੰਡ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਰਨ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਸੈਟ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਬੀ ਬੋਏ ਸੀ।
ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਲਿਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਇੰਡ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਬੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਸੈਟ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਮਾਇੰਡ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ, ਸਭ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਾਲਿਆ, 1.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋ ਕੇ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਜਾਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ 'ਚ ਆ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਡਰੀਮ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਐਲਬੋ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਚਿਕਸ 'ਤੇ ਹੈਂਡ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਡਰੀਮ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਦੀਦੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀਏ ਇੱਧਰ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਲੀ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਝੋਲੀ ਨਾ ਫੈਲਾਣੀ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਣੀ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਖੁਦ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਅੱਗੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਇਆ ਅਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਵੇਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਲਡਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਕੇ ਦਬਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਆ ਸਵੇਰੇ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਚਲੋ ਡਰੀਮ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਕੁਛ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸੀ। ਔਰ ਨਾ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਇਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਉਹ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਰੋਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ 7 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਦਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੋਰਮਲ ਪਰਸਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਟੇਟਸ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਐ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯਕੀਨ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਐਡ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਲ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਜੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਹੀ ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
फिर मैं फ़ोन करता संगत जी, मैं अपनी सिस्टर इन लॉ ਨੂੰ कॉल की ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ कॉल आई, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ नहीं ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਟਿਕਨ कॉल ही नहीं आई। फिर मैं अपनी दूजी सिस्टर ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ नहीं है, किंतु तो बड़ी किस्मत वाली, गुरु जी ਤੈਨੂੰ बुला रहे ने। मेरे हस्बैंड ने भी हाँ करती, मेरे घरदिਆਂ ने भी हाँ करती संगत जी। फिर मैं सेवा ते गई, उत्थे सेवा की, मैंने बहुत अच्छा लग्या, मैंने लंगर की सेवा मिली तो असी रात तक सेवा की। फिर मेरे हस्बैंड भी उत्थे रात नूं आ गए बच्चों नूं लैके। संगत जी मतलब कि जदों गुरु जी ने मैनूं कहा सी ना तेरे बच्चे रहे तो ठीक रहेंगी, गुरु जी के आशीर्वाद नाल मतलब कि मेरा बच्चा भी मेरे को रह गया, मेरे हस्बैंड ने किसी नूं नहीं दिता और मैं भी ठीक हो गई। शुकराना मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु जी, लख लख वार शुकराना, स्वास स्वास शुकराना, तुसी मेरे बच्चे दे मैनूं जिंदगी बख्शी जिहदे विच संगत जी मतलब कि मेरे ते मेरे हस्बैंड ते इन्ना को कुछ कष्ट सी, गुरु जी ने सब कुछ संभालिया। इत्थों तकन कि संगत जी मैं इन्नी को बीमार हो गई सी ना उदों कि मैनू गुरु जी ने एक न्यू लाइफ ब्लैस की हुई है। मेरे ते किसी ने ब्लैक मैजिक करता सी सारे परिवार ते, जिदे करके पहले मेरे हस्बैंड नाल इदां होया, फिर मेरे बड़े बेटे नाल, फिर मेरे ते बहुत कष्टी आई। मतलब कि मैनू तां इंसी कि मैं ख़त्म सी, मैनू एक न्यू लाइफ ब्लैस मिली सी। और शायद जो गुरु जी मेरे तो सेवा ले रहे ने वो भी मेरे कष्टां नूं ही ख़त्म कर रहे ने। संगत जी उस तो बाद संगत जी मतलब कि मेरे सत्संग तो बहुत ने, पर ये मेरा पहला सत्संग शुकराना सत्संग सी गुरु जी वास्ते, जो गुरु जी ने मैनू न्यू लाइफ ब्लैस की, मेरे परिवार नूं, मेरे बच्चे नूं, मेरे हस्बैंड नूं, सब नूं न्यू लाइफ ब्लैस की। शुकराना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु पा, हर श्वास श्वास का शुकराना। हमेशा अपनी कृपा दया मेर हमेशा बनाए रखना गुरु पा। माफ़ करना संगत जी मेरे तो जो भी भूल चुक होएगी सत्संग कर दिया, और गुरु पा माफ़ करना मैनू जो भी मेरी तो भूल चुक हुई ने। हुण मैं गुरु जी दे मंत्र जाप नाल ही अपने सत्संग अपनी वाणी नूं विराम देना चाहांगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मेरे ये पहले सत्संग है। मैं अपना गुरु जी के मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज मैं 22 साल हुआ मेरे शुगर है, मैं बहुत परेशान हूँ। शुगर से मेरे पैर से चला नहीं जाता है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं इतना परेशान ना मैं बैठ पाती हूँ, मैं न चल पाती हूँ, ना मैं बहुत रात में नींद नहीं आता है, मेरे बीपी भी हाई है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं कोई पे ड्यूटी करती हूँ तो एक दिन सब बोले दीदी आप सब परेशान रहते हो, क्या बात है? मैं किसी से कुछ नहीं बोलती, मैंने बोला कुछ कोई बात नहीं, ऐसी ही तबीयत ठीक नहीं है। तो बोले दीदी सब बड़ा मंदिर जाते हैं, आप भी जाया करो ना, वहीं पे सब ठीक होता है, कैंसर ठीक होता है, सब ठीक होता है, आप तो ठीक हो जाओगे दीदी, जाओ बड़ा मंदिर एक दिन जाओ ठीक हो जाओगे। तो मैंने बोला ठीक है चलो चलते हो, सब ठीक हो जाएंगे गुरु जी की कृपा से। तो मैंने गया, मैं अपना बहू को लेके गया तो मैं उस दिन धीरे धीरे चलते चलते गया। मैं सोचा मैं तो बैठ नहीं पाऊँगी, कैसे जाऊँ। फिर मैं जाके बैठे हुआ, आज जाके बैठो, उठने की टाइम देखा आराम से उठ गया। मैं देखा रे मैं तो आराम से उठ गया, गुरुजी मुझे बहुत कृपा करा। फिर देखा आगे जाके मैंने चाय प्रसाद पिया, जल प्रसाद पिया, फिर मैंने लंगर खाया। तो देखा बाहर आते आते मुझे बहुत अच्छे लगा, मैं तो चल पा रहा, धीरे धीरे मैं आराम से चल पा रहा हूँ, मेरे पैर से कोई दर्द ही नहीं लग रहा है। फिर उस दिन बारिश था, हमने आ गया, कहाँ पे स्वरूप मिलता है मुझे पता नहीं, मुझे मन में लगा था मैं जो स्वरूप मिल जाए मैं गुरुजी को देखूं। तो फिर मैंने दूसरी संडे के दिन गया,
2023 में मैंने जुड़ा हुआ गुरुजी के साथ, दिसंबर की महीना। तो मैंने फिर संडे के दिन, दूसरी संडे के दिन गया, 9 तारीख था उस दिन, दूसरी संडे के दिन गया। उस दिन जाके फिर भी जल प्रसाद पानी प्रसाद पिया, तो फिर मुझे बहुत आराम लगा। फिर मैं उस दिन मैं बहू के साथ गया, तो दोनों को चरण स्वरूप मिला। मैं तो बहुत खुश हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैं आ गए, फिर सब आके फिर मैंने कड़ा प्रसाद बनाया। मैंने बोला गुरुजी हमारे सब कड़ा प्रसाद बनाते हैं, सब सुनते हो मैं बैठे बैठे, जो कड़ा प्रसाद बनाते हैं सब आप दर्शन दे। तो मैं आके घर में कड़ा प्रसाद बनाया। गुरुजी ने मुझे ओम के रूप में दर्शन दिया, तो मैं तो खूब खुश हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी। फिर मेरे रोज़ मैसेज आता है, तेरे घर में ना ब्लैक मैजिक करा हुआ, तेरे पुत्र के ऊपर ब्लैक मैजिक करा हुआ। और मेरे एक ही बेटा है, तो पता नहीं किसने करा ऐसे। मेरे बेटा तो इतना अच्छी था, पता धीरे धीरे मेरे बेटा रोज़ घर में लड़ाई झगड़ा होता है। घर में तो कोई है नहीं। 2019 में मेरे पति की डेथ हो गया। एक बहू और एक बेटा, कोई कारण नहीं, अकारण में लड़ाई झगड़ा। फिर गुरुजी बोलते मैं सब ठीक कर दूंगी, तू बेटा बड़ा मंदिर आया कर बेटा को लेके। वो तो जाने की बिल्कुल राजी नहीं है। फिर ज़बरदस्ती एक दिन लेके गए, तो फिर गए थे, तो उस दिन हमें फिर गुरुजी की स्वरूप मिला, दोनों माँ बेटे की स्वरूप मिला। मैं आ गए स्वरूप लेके। फिर रोज़ मैसेज आते, तेरे पुत्र के ऊपर ब्लैक जादू कर रखा, किसी ने बहुत भयंकर ब्लैक जादू कर रखा। धीरे धीरे मैं ठीक करूँगी, तू चिंता मत कर, तू सत्संग कर। तेरे बेटा के ऊपर जो करा मैं देखूँगी। उसकी 2 दिन काम करता है, तीसरी दिन काम छूट जाता है। ऐसे बहुत परेशान हूँ। उसकी पापा नहीं है, मैं अकेला घर कैसे चलाऊँ। फिर धीरे धीरे गुरुजी ने बोला तो मैं ठीक कर दूंगा, और 2024 की आगे उसको कोई काम नहीं मिलेगा। जय गुरुजी। फिर गुरुजी ने मेरे बेटा को 2024 की 15 तारीख की काम दिला दिया, अच्छी काम दिला दिया गुरुजी ने। गुरुजी को लाख लाख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर मैंने स्वरूप लेके आया। मैंने बोला आज मैं गुरुजी की फिर कड़ा प्रसाद बनाऊंगी। मैंने कड़ा प्रसाद बनाया। कड़ा प्रसाद में देखा जैसे मैंने स्वरूप मिला, ऐसे नाग देवता ऊपर खड़ा हुआ, भोलेनाथ, और नीचे मेरे गुरुजी बैठा हुआ। मैं तो इतना खुश हूँ। बेटा को बुलाया, बेटा देख बाबू, ये कि देखो गुरुजी की जैसे स्वरूप ऐसे कड़ा प्रसाद में मुझे दर्शन दिया। मैं तो खूब खुश हूँ, इतना खुश हूँ मैं क्या बताऊँ संगत जी। फिर एक दिन जिस दिन राम जी आया अयोध्या में, उस दिन मैंने घर में कड़ा प्रसाद बनाया। मैंने बोला आज मैं कड़ा प्रसाद बनाऊंगी। कड़ा प्रसाद बना के मैं गुरुजी के आगे रखूंगी, मैं क्या बनाऊं। फिर कड़ा प्रसाद बनाया। कड़ा प्रसाद में पूरा मेरे माता जी पूरा 10 हाथ लेके माता जी बैठा हुआ। मैं तो इतना खुश हूँ। गुरुजी मुझे कैसे दर्शन दिया मुझे कुछ पता ही नहीं। ऐसे दर्शन दे गुरुजी, मेरी कृपा करा, बहुत मेरे हाथ पकड़ लिया। आज मैं तो गुरुजी की कृपा से मैं लड़ाई झगड़ा मेरे बच्चे की थोड़ी सी कम हुआ है। अभी भी तो है, लड़ाई झगड़ा करते हैं, गुरुजी की मैसेज आते, अभी भी पूरा ठीक नहीं हुआ। मैं ठीक कर दूंगा, तुझे चिंता मत करना बेटा, तू चिंता मत करना, मैं तेरे नाल हूँ। फिर मैंने क्या करा, एक दिन सब बोलते तितली रूप में दर्शन देते। गुरुजी मुझे तो तितली रूप में आप दर्शन नहीं दिया, सबको तितली रूप में दर्शन दे, तो आज मुझे तितली रूप में दर्शन देना। मैं ड्यूटी से आते थे मन में सोचा, आज गुरुजी मुझे तितली रूप में सब देखते, मैं तो चारों तरफ देखते रहते, कोई भी ना दिखाई देते तितली। फिर वीरवार था उस दिन, मैं ड्यूटी से आया, मैं बाहर गया, बाथरूम गया। फिर मेरे दरवाजा के आगे देखा कि ब्राउन कलर की एक तितली बैठा हुआ। उस दिन खूब ठंड था। तो फिर मेरे वो बोले मम्मी देखो कौन आया। मैंने बोला कौन आया। देखो गुरुजी आया ठंडा में, दरवाजा के नीचे जमीन पे बैठा हुआ। तो मैंने बोला गुरुजी आप आया। मैं तो इतना खुश हूँ, इतना चिल्ला के उठे। मैंने बोला गुरुजी आप आया, ठंडा में बैठे हुआ, आ जाओ मेरे हाथ पे आ जाओ।
फिर गुरुजी ने मेरे से हाथ लगाया, मेरे हाथ पे आ गया। हाथ पे आके मेरे पूरा शरीर में तितली पूरा शरीर में घेर लिया। फिर बहुत देर हो गया, मैं तो खुशी से खाली दिखा रहा हूँ। मैं वो को बोला बाबू फ़ोटो खींच, बेटा को दिखाएंगे, वो ड्यूटी से आएंगे। फिर मैंने फ़ोटो खींचा। फिर मैंने बोला गुरुजी आप कितना देर तक बैठोगे, आप अपना जगह बना रखो। फिर मेरे पलंग के सामने मेरे अलमारी है, अलमारी के ऊपर उड़ के बैठा हुआ। उस दिन था 25 दिसंबर। फिर उठा बैठा हुआ। फिर मैंने बोला वाह गुरुजी वाह, पूरा रात तो मैं खुशी से, मेरे नींद ही नहीं आया। फिर मैं क्या करूँ घूमते पूरा अलमारी घूम घूम के मेरे सर के सामने आके बैठो हुआ मेरे गुरुजी महाराज जी। मुझे इतना ब्लेसिंग करा। मैं गुरुजी की कृपा से मेरे शरीर ठीक है, मैं चल पा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, रात में मेरी नींद आ रहा है, मैं खुश हूँ। फिर इसके बैठे हुआ 25 तारीख था उस दिन। फिर 26 तारीख भी छुट्टी था, 26 तारीख भी वहीं पे ही बैठा हुआ। पूरा अलमारी बार बार घूम के वहीं पे मेरे सामने बैठा हुआ, मैं पलंग के ऊपर बैठा हुआ, वहीं पे ही बैठा हुआ। फिर मैंने 27 तारीख की ड्यूटी जाओ। फिर मेरे बेटा उस दिन घर पे था। मैंने बोला बाबू तू देखना मेरे गुरुजी की रखना, मेरे गुरुजी को जाने मत देना, गुरुजी बोले अच्छा मम्मी मैं ध्यान रखूंगी। फिर उस दिन था 27 तारीख मैं ड्यूटी गया गुरुजी के। मैंने बोला गुरुजी आप यहीं पे रहना, मैं आऊँगा ना तब तक जाना मत। फिर 5 बजे फ़ोन किया मेरे बेटा को, बाबू गुरुजी है ना? बोले हाँ मम्मी तुम्हारा गुरुजी तो वहीं पे बैठा हुआ तुम्हारे लिए। फिर जब मैं घर आया मेरे बेटे ने देखा नहीं, जब घर आया 7 बजे देखा मेरे नहीं है। फिर मैंने चला गया गुरुजी। मैंने बोला गुरुजी मुझे बिना बता के चले गए आप, मैं बहुत दुखी हूँ गुरुजी, मेरे पति नहीं है, मेरे कोई नहीं है दुनिया में, आप चले गए गुरुजी, आया तो फिर चले गए मुझे बिना बता के। फिर गुरुजी ने, मैंने बोला बाबू अभी मैं तितली ये बनाऊंगी, कड़ा प्रसाद बनाऊंगी। फिर कड़ा प्रसाद बनाया, कड़ा प्रसाद में बिल्कुल वही तितली आ गया। गुरुजी ने फिर मैसेज है पुत्र मैं कोई नहीं गया, मैं तो तेरे हाथ पकड़ लिया ना, मैं तेरे हाथ नहीं छोड़ूंगी, मैं कोई नहीं गया, मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर, तेरे सब ठीक हो जाएंगे, तेरे बेटा की सब ठीक हो जाएंगे, धीरे धीरे तो होएंगे ना, तू चिंता मत कर, तू सत्संग कर बेटा, तू ऐसे दुखी मत हो, तू दुखी होते तू रोते है मुझे अच्छे नहीं लगता, तू मेरे बच्चा है ना। फिर गुरुजी मैं रोज सुबह शाम देखती हूँ गुरुजी करते, रोज मैं रास्ते में जाती हूँ ड्यूटी, मेरे आगे पीछे गाड़ी देखती हूँ, इधर से गाड़ी उधर से जय गुरुजी लिखा हुआ। मैं तो खुशी से चले जाती हूँ, इतना खुशी से मैं पैदल चल के जाती हूँ। पहले तो मैं ऑटो के बिना चल नहीं पाती अब तो फिर मैं पैदल जाती हूँ, पैदल आती हूँ, खूब खुशी से गुरुजी की नाम लेके नमः शिवाय करते करते चले जाती हूँ। मैं कब घर पहुँच जाती हूँ मुझे पता ही नहीं चलता। आधा घंटे की रास्ता है, बस से उतार के मेरे घर आधा घंटे की रास्ता है, मैं आधा घंटा पैदल आती हूँ, पैदल जाती हूँ, मुझे लगती ही नहीं है मेरे पैर में दर्द है। तो फिर मैं खुश हूँ। अभी आज मैं गुरुजी के ये मेरे सत्संग है, आगे बढ़ो सत्संग है, मैं बाद में सुनाऊंगी आप लोगों को। अब तो मैं खुशी से घर चल रहा है, मेरे बच्चा भी थोड़ी बहुत शांति हुआ है, अभी भी है थोड़ी देर उसकी आराम मिला। गुरुजी ने बोला सब देख लेंगे, मैं तू चिंता मत करो बेटा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के मानते से मैं यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। कृपा बनाए रखना गुरुजी, मेरे बच्चे के ऊपर मेरे संग रहना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।